very good morning to all the students of Sampurna School. Today we will do science subject of class 8th, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So students, you are being known very well that besides synthetic fibers, there is another fiber also, that is natural fibers. Natural fibers are plant fibers and animal fibers. Plant fibers जैसे एक example हम ले सकते हैं cotton, okay, and animal fibers we can take example of wool, okay, silk. So these are the example of natural fibers. Now in this chapter we are going to read about synthetic fibers and plastics. So synthetic fibers are not man-made. These are made in factories. इनको factories में बनाया जाता है. Natural fibers तो plants और animals से हमें मिलते हैं, but synthetic fibers हमें factories में produce कराने पड़ते हैं. Produce होते हैं natural fibers को छोड़ के. Synthetic fibers हमेशा factories में produce किए जाते हैं. The clothes which we wear are made of fabrics. हर cloth जो होता है वो fabric से बनता है, whether it is natural fibers or synthetic fibers. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको जो कि घर में यूज़ की जाती हैं, जो फाइबर्स से बनी होती हैं. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Artificial fibers means we can say synthetic fibers जो factories में बनते हैं. So this is the table, you have to write it here. Why did you label some fibers as artificial? और कुछ fibers को artificial क्यों कहते हैं? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. What are synthetic fibers? अब हमें जानना है कि synthetic fibers क्या होते हैं. Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of a thread. और ये जो आप बीड देख रहे हो, ये आपके जो मालाएं होती हैं, नेकलेस होता है, उसकी बीड के फॉर्मेशन आप देख रहे हो. धागे में ये सारे बीड्स डाले जाते हैं, पिरोए जाते हैं और वो नेकलेस बन जाता है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स ये हैं, इनको अगर लाइन से जॉइन कर दें तो ये क्या बनते हैं, लॉन्ग चेन बना देते हैं. इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या आपको इनमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fibers भी क्या होते हैं, एक चेन होती है small units की जो कि join होती है आपस में. Each small unit is actually a chemical substance. और ये जो आपको यहाँ पे पेपर क्लिप्स के थ्रू एग्जाम्पल दे रहा है, तो एक एक पेपर क्लिप या फिर कह सकते हैं एक एक यूनिट जो है ये केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि आपस में जॉइंट होती है. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. और इसको पॉलीमर बोलेंगे. एक तरह से अगर वो केमिकल सब्सटेंस एक के बाद एक दूसरे को जॉइंट करते हुए एक चेन बनाता है, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं. ठीक है. The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning a part or unit. So a polymer is made of many repeating units. यहाँ पे ये पॉलीमर शो कर रहा है. ठीक है. Polymers occur in nature also. Polymers नेचर में भी होते हैं. Cotton for example is a polymer called cellulose. कॉटन अगर देखा जाए तो कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज यूनिट्स मतलब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को, जैसे यहाँ पे पेपर क्लिप्स को ज्वाइन किया गया है, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसे चेन फॉर्म करेंगे तो वो पॉलीमर बनाएगा. दैट इज सेल्यूलोज. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं. ठीक है. सो लेट्स रीड अबाउट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्टली रेयॉन.
रेयॉन आप क्या क्या कह सकते हो? रेयॉन को हम, ये रेयॉन भी एक फैब्रिक ही है। सो तो सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिल्क बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा गया था ना। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली। फैब्रिक्स जो है सिल्क से जो मिलता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क फैसिनेटेड एवरीबॉडी। सिल्क का जो टेक्सचर होता है वो सबको ही पसंद आ जाता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और यही तरीके किए गए कि सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सके, क्योंकि वो अगर हम नेचुरल एज अ नेचुरल फाइबर सिल्क यूज करते हैं तो दिस इज वेरी कॉस्टली, बट अगर हम उसे आर्टिफिशियली बनाएंगे तो उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ था वहाँ पे कि साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। सिल्क की प्रॉपर्टी जैसी ही उन्होंने डिस्कवर किया एक फाइबर। सच अ फाइबर was obtained by chemical treatment of wood pulp। wood pulp के chemical treatment से उस फैब्रिक को डेवलप किया गया। दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इसी को रेयॉन बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। तो रॉ मटेरियल, इसके प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज भी हो सकता है, और इसको कई बार रीजेनरेटेड फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉडिफाइंग, मतलब नेचुरल फाइबर को मॉडिफाई करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को ही मॉडिफाई कर देगा तो ये प्रोड्यूस हुआ होता है। Rayon is not truly an artificial fiber because its raw material is a natural fiber, क्योंकि हम अभी बताया मैंने कि नेचुरल फाइबर को ही मॉडिफाई करता है, तो इसलिए इसको हम एग्जैक्टली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कह सकते। However, for all practical purposes, it is included into man-made fiber और synthetic fiber। इसलिए हम इसको synthetic fiber कहते हैं क्योंकि ये man-made है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही मेंशन की हुई हैं। सो रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कार्पेट्स। ये सारे एग्जाम्पल्स और क्या है यहाँ पे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीटली। जस्ट रीड इट प्रॉपरली सो दैट यू मे अंडरस्टैंड मोर। सो नाउ नायलॉन, व्हाट इज नायलॉन? अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक दूसरा फाइबर है जो कि मैन मेड ही होता है। In 1931 it was made without any natural raw materials, मतलब ना प्लांट ना एनिमल्स का यूज किया गया। और इसको कैसे प्रिपेयर किया गया? बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स, और इसको एमाइड मॉलिक्यूल्स के थ्रू पॉलीमराइज किया गया और तब ये बनाया गया इसको। सो लेट्स रीड। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal, कुछ भी नहीं यूज किया गया। It was prepared from coal, water and air। इसको किससे बनाया गया? कोयले से, पानी से और हवा से। It was the first fully synthetic fiber। रेयॉन तो कुछ नेचुरल फाइबर्स यूज किए जाते हैं इसलिए हम एग्जैक्टली इसको सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते, बट ये नेचुरल फाइबर्स नायलॉन में बिल्कुल नहीं यूज होता है। और इसको किससे प्रिपेयर करते हैं? कोल्ड वाटर और एयर से, इसलिए फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर काफ़ी, जो आप सॉक्स वगैरह पहनते हो कई बार ऐसे नायलॉन के होते हैं, वो सारे नायलॉन के होते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं, हल्के होते हैं, इलास्टिसिटी होती है ना उसमें, और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स चमकीले, एंड ईजी टू वॉश, और उसको आराम से धोया जा सकता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इसलिए ये फैब्रिक जो है क्लोथ्स बनाने के लिए पॉपुलरली यूज किया जाने लगा। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। बहुत सारी चीज़ें नायलॉन के फैब्रिक से बनती हैं, जैसे सॉक्स हैं, रोब्स बनते हैं, टेंट्स बनते हैं, टूथ ब्रशेस बनते हैं, कार सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट होती हैं वो भी कई बार नायलॉन से ही बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग, ये सारी चीज़ें, जो कर्टन्स, ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनाई जाती हैं। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing?
यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जो रोप्स वगैरह होते हैं और जो पैराशूट्स होते हैं उनको हम नायलॉन से बनाते हैं। क्या नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है? सो नायलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. अगर हम स्टील वायर की बात करें तो नायलॉन थ्रेड जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Now let's do one activity 3.1. Take an iron stand with a clamp. This is clamp and this is iron stand here. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. 60 centimeter length का cotton thread लीजिए, tie it into the clamp. इसको clamp में बांध दीजिए so that it hangs freely. इसको hang करा दीजिए freely बिल्कुल. From it as shown in the figure, at the free end suspend a pan so that weight can be placed in it. उसमें ताकि कुछ weight रखा जा सके pan के अंदर. Add weight one by one till the thread breaks. और तब तक उस पर weight डालते रहिए जब तक thread break नहीं हो जाता. Note down the total weight required to break the thread. और thread को total weight जितना उस पर लास्ट आपने weight रखा और जब वो thread टूटा तो वो weight देखिए कि actually कितना है. This weight indicates the strength of the fiber. और इससे पता चलेगा कि फाइबर में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो. और फिर सेम एक्टिविटी को वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलॉन इन सब से एक्सपेरिमेंट करिए और फिर उसके बाद पूरे वेट के संग टैबुलेट करिए. जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो जो थ्रेड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. उससे कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाई जा सकेंगी जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहती हैं. देन polyester and acrylic. Polyester and acrylic is another synthetic fiber. Let's read about it. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. और जो polyester या acrylic से चीज़ें बनती हैं वो जल्दी से shrink नहीं होती, वो wrinkled नहीं होती. It remains crisp and is easy to wash. और ये crispy बिल्कुल crisp जैसी रहती हैं. It remains crisp and easy to wash. वॉश करने में भी easy होती हैं. It remains crisp and easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. और इसीलिए इसको suitable माना जाता है dress materials बनाने के लिए. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. PET क्या है? Polyethylene terephthalate, ठीक है? Polyethylene and means ये combined name है polyethylene terephthalate, ठीक है? So you have to learn the full form of PET. Polyethylene, PE, polyethylene 40 terephthalate. Okay, is very similar form of polyester. ये बिल्कुल polyester के बिल्कुल similar होता है. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. और ये polyester ये PET जो है काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल होता है. बॉटल्स वगैरह बनती हैं, यूटेंसिल्स कुछ कुछ बनते हैं, फिल्म्स, वायर्स, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर की चीज़ें जिन जिन चीज़ों से मतलब जो जो चीज़ें पॉलिएस्टर से बनती हैं उनकी लिस्ट बनाओ. PET आप देखते हो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जो कि कंटेनर्स वगैरह सब चीज़ों में बनता है ना. मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं वो भी उसी से बनते हैं, ठीक है. ये पॉलिएस्टर है, तो ये आपको लर्न करना है और प्रॉपरली एक बार लेसन गो थ्रू करना है, ठीक है. पॉलिएस्टर is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. अब मैंने जैसे आपको बताया पॉलीमर क्या होता है. पॉलीमर स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करते करते जो बनता है चेन उसको पॉलीमर बोलते हैं. वैसे ही पॉली प्लस ईस्टर मीन्स पॉली मीन्स बहुत सारे ईस्टर होते हैं, तो एक केमिकल सब्सटेंस है
एक केमिकल है, उसको हम उसके जो यूनिट्स हैं एक एक ईस्टर को ज्वाइन करते हैं तो वो पॉलीएस्टर बनता है, मतलब एक ईस्टर का पॉलीमर बनता है तो पॉलीएस्टर बोलते हैं उसको। ईस्टर्स आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स, which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Poly plus cot means polyester plus cotton. Polywool means mixture of polyester and wool. इस तरह से काफ़ी सारे फैब्रिक्स एक दूसरे से मिक्स करके बनाए जाते हैं। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear, मतलब वो appear होते हैं, मतलब वो natural wool से नहीं बनते, लेकिन वो appear होते हैं to resemble wool, मतलब ऐसा लगता है कि wool के बने हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. और कई बार ऐसे वुलन ड्रेसेस हम पहनते हैं जो कि एक्चुअली वूल से नहीं बने होते हैं, वो एक्रिलिक से बने होते हैं, अनदर सिंथेटिक फाइबर यूज किया जाता है उसमें, दैट इज एक्रिलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जब भी हम कोई नेचुरल तरीके से नेचुरल सोर्सेज के थ्रू कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो खरीदते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से मिलते हैं, क्योंकि उसको बनाते नहीं हैं लोग। बनाने वाली चीज़ें तो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें बहुत रेयर मिल पाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सपेंसिव। Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। और जो एक्रिलिक से बने हुए जैसे कुछ स्वेटर्स आप देखते हो ना, कई बार एक्सपेंसिव नहीं होते, शॉल्स और स्वेटर्स काफ़ी लो रेट पे, चीपर रेट पे मिलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो एक्रिलिक से बने होते हैं एंड इट इज़ चीप। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है उनमें, कलर्स की वैराइटीज मिलती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। अब ये मैन मेड है, इसलिए इसमें ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा केमिकल्स, सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा पॉपुलर है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, और ये एक्टिविटी आपने क्लास 7th में एक्टिविटी 3.6 में कर रखा है पहले ही। उसमें आपने क्या देखा था? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. Synthetic fibers को अगर हम बर्न करते हैं तो वो natural fibers से उनका behavior काफ़ी different होता है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. Synthetic fibers melt होते हैं heating से, ठीक है, और बहुत आसान से, इसीलिए कहते हैं ना कि सिंथेटिक ड्रेसेस पहन के किचन में वर्क नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट गो नियर फायर वियरिंग सिंथेटिक ड्रेसेस बिकॉज इट कैन कैच फायर मोर इजीली, और वो मेल्ट होता है ना कि वो जलता है। ओके, सो उसको हम मना करते हैं किचन में या हीटिंग प्लेस पे पहन के जाने के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। दिस इज एक्चुअली a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disastrous, और इससे वो disastrous भी हो सकता है क्योंकि वो immediately melt हो जाता है, वो बिल्कुल पिघलने लगता है, और this will be more disastrous. The fabric melts and sticks to the body of a person, ठीक है, वो stick हो जाता है बॉडी में क्योंकि वो melt होता है और वो बॉडी में stick होता है, और वो जो भी पर्सन ने उसे पहन रखा है वो उसकी बॉडी पे स्टिक होने लग जाता है। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. आप अगर लेबोरेटरी या किचन में वर्क कर रहे हैं तो आप उधर वर्क नहीं, मतलब काम नहीं कर सकते सिंथेटिक लेबोरेटरी या किसी किचन में काम नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि आपने सिंथेटिक क्लोथ्स पहन रखे हैं, एंड दैट विल बी वेरी डिजास्ट्रस इफ यू विल वर्क इन द किचन एंड लेबोरेटरी wearing these types of dresses. Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Means what you are going to understand here, that सारे synthetic fibers जो हैं कैसे prepare होते हैं, बहुत सारे processes से, और रॉ मटेरियल्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम का।
मतलब पेट्रोलियम के से ओरिजिनेट जो भी चीज़ें होती हैं उनको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के? So characteristics में हम पढ़ेंगे that imagine that it is a rainy day, what kind of umbrella would you use and why? अब rainy day है, just example, तो आप umbrella लेके चलते हो। umbrella किस कपड़े का बना होता है? umbrella of course synthetic fabric का बना होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको यूज करते हैं क्योंकि उस पर से पानी आराम से ड्रेन हो जाता है। So synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Synthetic fibers की क्वालिटी है कि उसको आराम से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत जल्दी सूखता है, ड्राई होता है और रेनी डेज में इसलिए काम लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव होता है, पैसे कम लगते हैं उसको। ड्यूरेबल होता है, उसको कभी भी कैरी कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द रीजंस। और इजी टू मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा यूज में होता है और पॉपुलर है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न for yourself. This is activity 3.2. Just go through it properly. Take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, the other could be synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. Means आप क्या करोगे, एक मग में पानी लोगे, दो मतलब सॉरी 2 मग्स में पानी लोगे और सेम क्वांटिटी लेनी है। एक में आप सिंथेटिक फाइबर डालो, एक में नेचुरल फाइबर डालो, नेचुरल फैब्रिक और एक में सिंथेटिक फैब्रिक। तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा? आप उसको सूरज के सामने सुखाओगे, कपड़ों को गीला करने के बाद 5 मिनट तक उनको सोक करो और फिर आप क्या देखोगे, डिफरेंस आपको दिखाई देगा मग्स में। मतलब आपके जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो एक मग में ज़्यादा और एक मग में कम हो जाएंगे। आप वहाँ पे भी देखोगे, आप चेक कर सकते हो, सिंथेटिक फाइबर्स पहले ड्राई होगा और नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में, ठीक है। तो ये सारी इस एक्टिविटी को करने पर आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।